गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों अज असी असाइनमेंट शुरू करन जा रहे हैं 165 क्लास 10th का चैप्टर। अज बच्चों साडा शुरू हो रहा है कोआर्डीनेट ज्योमैट्री। पहला असी चैप्टर किहड़ा खत्म करके हटे है कंस्ट्रक्शनस का। ठीक है जी। अज दी असाइनमेंट तो बच्चों तुहाडा नवा चैप्टर शुरू होने जा रहा है कोआर्डीनेट ज्योमैट्री। बच्चों 9th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਿਆਮਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਐਬਸਿਸਾ, ਆਰਡੀਨੇਟ, ਔਰੀਜਿਨ ਤੇ ਪਲਾਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਉੱਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਪਲੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪਲੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੋੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਰੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ, ਐਕਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ 3, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ 3 ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ 4। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸ ਦਾ ਲਿਖੂੰਗੀ, ਐਕਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ 3 ਐਂਡ ਵਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਬਸੀਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਾਂ ਭੁੱਜ ਜਾਂ ਐਬਸੀਸਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਰਡੀਨੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, 3 ਭੁੱਜਿਆ ਤੇ 4 ਕੋਟੀ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਮੇਰਾ ਐਬਸੀਸਾ ਆ ਤੇ ਵਾਈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਬਸੀਸਾ ਤੇ ਆਰਡੀਨੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਔਰੀਜਿਨ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਔਰੀਜਿਨ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਔਰੀਜਿਨ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰੀਜਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ 0 ਤੇ 0 ਦਾ। ਉੱਥੇ ਐਬਸੀਸਾ ਵੀ 0 ਹੈ ਐਂਡ ਆਰਡੀਨੇਟ ਵੀ 0 ਹੈ, ਐਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵੀ 0 ਹੈ ਤੇ ਵਾਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵੀ 0 ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਪਾਂ 9th ਦੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਲੋਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਔਰੀਜਿਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 3, ਵਾਈ ਦੀ ਰਕਮ ਕੀ ਆ ਰਹੀ, ਵਾਈ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਵਾਈ ਦੀ ਰਕਮ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਐਕਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੀ, ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਨਾ। ਐਕਸ ਦਾ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਐਕਸ ਦਾ 6 ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਈ ਦਾ ਕੀ ਲਿਆ ਬੱਚਿਓ 0 ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸ ਤੇ 0। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 0 ਹੋਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ ਦਾ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸ ਦਾ 0 ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਾਈ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ 8 ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਹੇਅਰ, ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਐਕਸ ਦਾ 0 ਤੇ ਵਾਈ ਦਾ 5, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈ ਦਾ 5 ਆ ਰਿਹਾ
एक्स का तो 0 हो ही नहीं रहा, एक्स का तो कोई पॉइंट हो ही नहीं रहा क्योंकि पॉइंट अजे मेरा की है वाई एक्सिस से है। इसी चीज़ में मैं जर्नलाइज करके जो मैं कहा कोई भी पॉइंट मेरा वाई एक्सिस से किस तरीके का होएगा बच्चों, 0 तो वाई टाइप का। ठीक है जी, इन्नी कि तुहानू समझ लग गई है। तो चलो मैं तुहानू दोबारा एक बार जर्नलाइज करके उत्थे दस दिनी हाँ। आप अपनी असाइनमेंट वाल चलीए। देखो एबसीसा तुहानू पता लग गया, एक्स कोआर्डीनेट नू असी एबसीसा कहने हैगे, वाई कोआर्डीनेट नू असी ऑर्डीनेट या कोटी कहने। मूल बिंदु जेडे हैगे 0 0 नाल दर्शाए जाते, तो पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस जेडे होणगे, एक्स एक्सिस ते लगन वाले सारे पॉइंट्स जेडे हैगे एक्स 0 के फॉर्म के होणगे, तो वाई एक्सिस ते लगन वाले सारे पॉइंट जेडे हैगे 0 वाई की फॉर्म के होणगे। ठीक है जी, आ देखो जो वाई सीगा तो पहली रकम 0 आ, तो जिथे क्योंकि एक्स तो वाई आप लिखते ना एक्स कॉमा वाई, दूजी जगह तो वाई रख के पहला असी 0 कर देना क्योंकि वो पॉइंट जेडे है वाई एक्सिस से है। उसी तरह एक्स एक्सिस वाला पॉइंट की आ गया, पहला एक्स लिख लेना तो दूजा पॉइंट असी 0 लिखांगे, असी वाई नू इत्थे 0 लिख देना है। हुण आपां जिहड़ा देखदे आ कि 10वीं क्लास दे विच असीं की करना बच्चों, हुण तक असीं कीता कि असीं ग्राफ दे उत्ते एक पॉइंट नू प्लॉट कीता, नहीं या 2 पॉइंट नू प्लॉट कीता या 3 पॉइंट नू प्लॉट कीता, या जिन्ने मर्जी पॉइंट्स असीं प्लॉट कीते। 10वीं दे विच जिहड़ा हैगा आ असीं की करना है, कोई दो पॉइंट सानू दिते होणगे, उन्हां दे विच दा असीं की करना बच्चों, डिस्टेंस पता करना है। डिस्टेंस नू आपां पंजाबी च कहने आ दूरी। नाउ सपोज साडे कोल ए दो पॉइंट्स ने, पॉइंट ए ते पॉइंट बी। पॉइंट ए दे निर्देशक किहड़े दिते हुए ने, x1 ते y1। ये जस्ट नोटेशन ली हैगी, ये तुहाडी कोई भी वैल्यू हो सकती। सपोज करो पॉइंट जे मैं इत्थे दर्शावां, ए देखो की हैगा 1 2 ते 3, ए 3 आ रहा, तो y दा कितना आ रहा 1 ते 2, तो यह पॉइंट किहड़ा बन रहा 3 ते 2। पर इनू जर्नलाइज करने लई एक फॉर्मूला बनाने लई इन्होंने की लिया हैगा, इनू सिंपल x1 y1 लिया। हुण मान लो साडे कोल एक पॉइंट हैगा या x1 y1, दूजा पॉइंट हैगा साडे कोल x2 y2, तो इन्हां दोवां दे पॉइंट्स दे विच दा जिहड़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हैगा आ, उन्होंने इन्हां ने रैड लाइन नाल दिखाया आ, उन्होंने आपां डी लिखते हैं। ठीक है जी, 10वीं क्लास दे विच पहली एक्सरसाइज दे विच असीं यही देखना आ कि डी नू कैलकुलेट करन दा फॉर्मूला की हैगा। ते फॉर्मूला जिहड़ा हैगा पहला मैं तुहानूं सिंपल इस डायग्राम तो दसदा। तुसीं की करना बच्चों, जिहड़ा बी पॉइंट हैगा आ, ठीक है जी, एदा पहला कोआर्डीनेट की हैगा x2, तुसीं की कर देना x2। चलो मैं इत्थे तुहानूं लिख के दिखानी, एक मिनट रुको जरा। ए पॉइंट इत्थे लिख लेना तुसीं x1 y1, ये पहला पॉइंट आया, दूजा हैगा x2 y2। ठीक है जी, फिर तुसीं की करना आ, फॉर्मूला किवें बनाउणा आ, ये मैं तुहानूं याद रखण लई दसदी हां। तुसीं की करना, अंडर रूट दे विच फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस, वो किहदे बराबर आएगा, पहले वाले कोआर्डीनेट नाल दूजा वाला कोआर्डीनेट तुसी माइनस करना। ठीक है जी, समझ आया। मतलब तुसी की करना बच्चों, x2 माइनस x1 करना, तो फिर असी की करांगे, एदा स्क्वेयर करांगे। नाल ही की करना, फिर असी की लिखना इत्थे, वी विल राइट प्लस। ठीक है जी, फिर y2 दे नाल असी की करांगे, y1 नू की करांगे माइनस करांगे, y2 माइनस y1, फिर एदा कर दांगे स्क्वेयर। ठीक है जी, तो आ बच्चों जी आ चीज़ हैगी है तुसी याद कर लैनी, दिस इज़ योर फॉर्मूला। ठीक है जी, मैं याद करने का तरीका दसिया कि दो पॉइंट्स जिहड़े हैगे नाल लिख लियो, पहले वाले नाल पहला वाला माइनस कर दियो। ठीक है जी, सैकेंड वाले नाल सैकेंड वाला माइनस कर दियो, फिर उन्हां दा स्क्वायर जरूर करना है, तो दोवां दे विच प्लस दा लिखिया होना जरूरी है। ठीक है, प्लस नहीं लिखोगे तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। हुण आपां देखिए कि फॉर्मूला जिहड़ा हैगा बनिया किद्दां। देखो बी दे पॉइंट्स किहड़े ने, x2 ते y2। सानू पता हैगा है कि जिहड़ा y2 पॉइंट हैगा आ, वो की हुंदा है बच्चों, इस पॉइंट दा x एक्सिस तो डिस्टेंस, y2 की हैगा आ पॉइंट ए दा x एक्सिस तो डिस्टेंस, मतलब कि ए पूरी दी पूरी जिहड़ी मेरी लाइन हैगी बच्चों, ये की होएगी y2। ठीक है, हुण आ वाला जिहड़ा पॉइंट हैगा है, देखो आ वाला पॉइंट क्या हैगा, क्योंकि इत्थे y1 आ हैगा आ वाला पॉइंट यही चल रहा ना, इस करके इत्थे भी की आएगा, इत्थे भी मेरा कोआर्डीनेट जिहड़ा y दा आएगा वो y1 आ रहा। ठीक है जी, तो मैं जे कहां y1 की हैगा, y1 की हैगा बच्चों इस पॉइंट दा x एक्सिस तो डिस्टेंस, एदा मतलब जिहड़ा मेरा इन्ना क डिस्टेंस हैगा बच्चों वो की हैगा आ y1। तो देखो पूरा y2 आ,
नीचे वाला y1 आ तो जे मैं आ वाला डिस्टेंस कढ़ना होवे तो वो मेरा डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, वो मेरा डिस्टेंस आ गया y2 माइनस y1। ਇਹਦਾ मतलब मेरी आ वाली लाइन कितनी आ y2 माइनस y1। उसी तरह मैं हुण एक्स एक्सिस वाली गल करदी हाँ, ਜਿਹੜਾ मेरा बी पॉइंट हैगा है, देखो आ वाला पॉइंट हैगा है, फिलहाल मैं इनू ओमिट करदी हाँ, ठीक है। तो आ चीज़ तुसीं हुण याद कर लेनी। देखो आ वाला जिहड़ा पॉइंट हैगा आ, इत्थे की आएगा, क्योंकि इत्थे x2 हैगा आ, यही जिहड़ा डिस्टेंस हैगा है उही डिस्टेंस मेरा इत्थे आ। इहदा मतलब इत्थे भी पॉइंट मेरा किहड़ा आ रहा बच्चों x2 दा। ते x2 की हैगा असली च y एक्सिस नालों इस पॉइंट की दूरी। इहदा मतलब जे मैं इस पॉइंट ते गल करां तो मेरे पूरी दी पूरी जिहड़ी आ लेंथ हैगी आ वो कितनी आ गई बच्चों x2। तो मेरी इस पॉइंट तो y एक्सिस की दूरी कितनी आ गई, मैं दूजे कलर नाल दिखानी है, ए मेरी दूरी हैगी बच्चों x1। उसी तरह वड्डी विचों ए पूरी विचों मैं आ वाली चीज़ माइनस करनी है तो मेरा आ वाला डिस्टेंस कितना आ गया x2 माइनस x1। ठीक है जी। तो मतलब मैं दस सकती कि अगली डायग्राम दे विच मेरी आ वाली चीज़ की हैगी बच्चों, आ मेरी लेंथ की बन गई y2 माइनस y1 तो आ वाली लेंथ मेरी की बन गई x2 माइनस x1। हुण मैं तुहानूं थोड़ा जिहा रिवाइज़ कराउण लई दस रही हाँ कि असी राइट एंगल ट्रायंगल की एक थेरम कीती सीगी ट्रायंगल चैप्टर दे विच, जिहदे विच असी की कीता सीगा कि जिहड़ा हाइपोटेन्यूज दा स्क्वेयर हैगा बच्चों किहदे बराबर हुंदा आ बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। उही चीज़ हुण तुसीं इत्थे इमेजिन करनी है। देखो आ एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, तो जे मैं डी लिखना होवे बच्चों तो डी की हैगा आ स्मॉल डी हैगा, चलो मैं कैपिटल डी चलो स्मॉल डी लिख लेनी कन्फ्यूजन ना होवे। जिहड़ा डी हैगा बच्चों वो किहदे बराबर आएगा, इत्थे आपां डी दा स्क्वेयर लिखदे सी ना हाइपोटेन्यूज दा स्क्वेयर, वो किहदे बराबर आएगा बेस स्क्वेयर। बेस स्क्वेयर की हैगा मेरा आधार दा स्क्वेयर, ठीक है, जोड़ लंब दा स्क्वेयर। लंब की हैगा मेरा y2 माइनस y1 दा स्क्वेयर। तो अगले स्टैप दे विच जिहड़ा मेरा स्क्वेयर इस पासे सीगा मैं दूजे पासे इनू स्क्वेयर रूट दे विच लिखता है x2 माइनस x1 दा स्क्वेयर, स्क्वेयर इत्थे आ प्लस y2 माइनस y1 दा स्क्वेयर। ठीक है जी। इत्थों जिहड़ा ये फॉर्मूला हैगा डी दा डिराइव किया है कि डी दा फॉर्मूला बनया किदां असली च। ठीक है जी। जे किसी नूं नहीं समझ आया कोई गल नहीं हैगी बच्चों, तुसीं बस इहदा फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला की हैगा एक बारी मैं रिवाइज करवा देनी, x2 माइनस x1 दा स्क्वेयर जोड़ प्लस पाना y2 माइनस y1 दा स्क्वेयर। ठीक है जी। आ फॉर्मूला याद रखना है तो ये बेस ते असीं हुण असाइनमेंट्स ते सम करन लगे हैं। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन साडी असाइनमेंट दा हैगा आ बिंदुआं दे हेठ लिखे जोड़ियां दे विचकारली दूरी पता करो। असीं की करना हैगा बच्चों डिस्टेंस पता करना हैगा। पहला पॉइंट हैगा आ और दो पॉइंट सानू किहड़े दिते होए आ 2 ते 3 ते दूजा सानू पॉइंट दिता होया है 4 ते 1। ਇਹਦਾ मतलब देखो बच्चों x1 ते y1 आ हैगा ते x2 ते y2 4 ते 1 दिता होया। हुण किवें करना सीगा, सब तो पहला की करना तुसी डिस्टेंस फॉर्मूला या तुसी लिख सकते हो विचकारली दूरी। दूरी किहदे बराबर आ गई अंडर रूट दे विच लिखना हैगा। सब तो पहला फॉर्मूला हैगा कि x2 माइनस x1। ठीक है जी। हुण x2 की हैगा या 4 माइनस 4 नूं किहदे नाल माइनस करना सीगा बच्चों 2 दे नाल। 4 माइनस 2 दा स्क्वेयर तुसी इहदा वर्ग कर लेना, फिर असी प्लस लिखना, फिर तुसी की करेंगे इहदा दूजा पॉइंट हैगा जिहड़ा 1 माइनस 1 दे नाल की माइनस करना बच्चों 3 माइनस करना है 3 दा स्क्वेयर। ठीक है जी। बस अगे असी इनू की करना इनू सिंपलीफाई करना हैगा है। 4 विचों 2 कड्डे 2 आ गया, इहदा स्क्वेयर कर लेना प्लस 1 विचों 3 गए वो की आ गया साडा -2, इहदा असी वर्ग कर लेना। फिर की आ गया 2 का वर्ग कितना आ गया 4 प्लस -2 का वर्ग कितना आ गया बच्चों -2 नूं जे आपां -2 नाल मल्टीप्लाई करदे वो भी साडा की आउंदा है 4। ਇਹਦਾ मतलब साडा आंसर की आ रहा 4 जोड़ 4 वो आ गया 8 तो 8 नूं असीं तोड़ के की लिख सकते बच्चों 2/√2। ਇਹਦਾ मतलब साडे 2 पॉइंट्स जिहड़े हैगे उन्हां विच दी जिहड़ी दूरी हैगी आ जदों आपां इहनूं प्लेन ते रिप्रजेंट कर रहे हैं। ठीक है। 2-3 पॉइंट इत्थे आएगा तो 4-1 पॉइंट जिहड़ा हैगा वो इत्थे कित्ते आएगा। ठीक है जी। इन्हां दोवां दे विच दी जिहड़ी दूरी हैगी बच्चों दूरी जिहड़ी हैगी वो कितनी हैगी आ 2/√2। नैक्सट पॉइंट जिहड़ा हैगा वो करवाउण लगी हैगी आ। ते नैक्सट क्वेश्चन साडा हैगा बच्चों 2 पॉइंट्स दिते होए आ
-5 7, दूजा साडे कोल पॉइंट दिता हैगा -1 ते 3, -1 ते 3, ठीक है जी। फिर इहदा डिस्टेंस कढना हैगा, बहुत सिंपल हैगा, फॉर्मूला तुसीं लिख लेना एक बारी, जिवें फॉर्मूला मैं लिख दिंदी एक बारी, x1 - x2 दा स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दा स्क्वायर, ठीक है जी। असी वैल्यूज़ फिल कर लीए फटाफट। x2 की वैल्यू हैगी आ -1, फिर माइनस लिखना, तो x1 की वैल्यू हैगी -5। हुण -5 जिहड़ा हैगा बच्चों आपां ध्यान नाल ब्रैकेट च लिखांगे, फिर आपां फरदर ਇਹਦਾ स्क्वायर करना है, ਇਹਦਾ स्क्वायर करना, ਇੱਥੇ 2 माइनस आने आ, ठीक है जी। फिर अगे लिखांगे प्लस का प्लस, फिर अगली रकम शुरू करिए। y2 की हैगा, y2 हैगा साडे कोल 3 माइनस, तो y1 की हैगा बच्चों, वी हैव y1 7, ਇਹਦਾ स्क्वायर करना, इनू आपां सिंपलीफाई कर लीए। ये अगे की आएगा -1 का -1, तो माइनस माइनस की बन गया बच्चों प्लस, तो असी ਇਹਦਾ स्क्वायर करना है प्लस 3 माइनस 7 की आ गया -4, असी ਇਹਦਾ वर्ग करना है। अगे इनू होर सॉल्व कर लीए, माइनस प्लस माइनस, 5 चों 1 कड्डे 4, तो निशानी वड्डे दी मतलब निशानी आएगी प्लस दी, ये आ गया +4 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर की आ गया -4 का स्क्वायर की आ गया बच्चों 16, ठीक है जी। इनू मैं इत्थे अगे सॉल्व कर देनी है, ਇਹਦਾ आंसर की आएगा 4 का वर्ग आ गया 16, 16 जोड़ 16, ये आ गया मेरा √32। हुण 32 नूं आपां सिंपलीफाई किवें करांगे, 32 दे फैक्टर्स बना लो, 2 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, तो 2 4 8, तो 2 2 4, ਇਹਦਾ मतलब 32 नूं मैं की लिख सकदी बच्चों, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है जी। तो अंडर रूट दे विचों मैं बाहर कड्डूंगी, 2 बारी 2 लिखिया तो मैं 1 बारी लिखूंगी, गुना 2 बारी 2 लिखिया मैं 1 बारी लिखूंगी। आ जिहड़ी रकम कल्ली रह गई आ जिहड़ी रकम कल्ली रह गई, इनू मैं अंडर रूट 2 दे विच ही लिखूंगी। ਇਹਦਾ मतलब 2 गुना 2 मेरा की आ गया 4 अंडर रूट 2, आ मेरा की आ गया बच्चों आंसर आ गया। ये मेरी की आ गई डिस्टेंस आ गया, कितना इन्ना दोवां पॉइंट्स दे विच दा डिस्टेंस। थर्ड सम भी कर लिया फटाफट। 2 पॉइंट सानू दिते हुए आ, एक पॉइंट हैगा ए ते बी, ਇਹਦਾ मतलब x1 ਤੇ y1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ a ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, x2 ਤੇ y2 ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ -a ਤੇ -b। ਹੁਣ दूरी सूत्र की हैगा आ, डिस्टेंस का फार्मूला की हैगा, फटाफट लिख लीए अंडर रूट ऑफ x2 की हैगा आ a माइनस x1 की हैगा a, ਇਹਦਾ स्क्वायर कर लेना, प्लस y2 की हैगा -b, माइनस लिखना क्योंकि फॉर्मूले च माइनस लिखा होगा, y1 की वैल्यू की हैगी आ b, ਇਹਦਾ स्क्वायर कर लेना। चलो सॉल्व करिए अगे, -a एक ही आ गया -2a, ਇਹਦਾ स्क्वायर आ गया, प्लस -b एक ही आ गया -2b का वर्ग। इनू अगे सिंपलीफाई होर करांगे, 2 2 का की आ गया 4, तो a गुना a आ गया a की पावर 2, प्लस 2 गुना 2 4, तो b की पावर 2। तो अगे असी की करांगे, 4 दोवां विचों कॉमन लैके बच्चों अंदर असी लिख सकते हैं a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, पर ये सारी रकमां अंडर रूट दे विच आ रही है। तो देखो आपां हुण अगे की कर सकते हैं, जिहड़ा 4 हैगा बच्चों 4 नूं आपां लिख सकते 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 लिख के मतलब 2 नूं असी अंडर रूट चों बाहर कढ के, तो साडा अंदर आंसर की बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इहदा मतलब साडा जिहड़ा डिस्टेंस हैगा आ वो की आ गया 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन हैगा साडा बिंदुआं 0 0 ਅਤੇ 36 ਤੇ 15 ਵਿਚਕਾਰਲੀ दूरी पता करो। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ पता हैगा बच्चों कोई पॉइंट ਜਿਹੜਾ हैगा आ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ डिस्टेंस पता करना हैगा आ फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है जी। मान लो साडा पॉइंट ਜਿਹੜਾ हैगा ਇੱਥੇ हैगा x ਤੇ y, ਤੇ वैसे डिस्टेंस फार्मूला ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ आ, डिस्टेंस फार्मूला ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ आ कि x2 मतलब कि x माइनस x1 की हैगा आ 0, ਇਹਦਾ स्क्वायर ए डिस्टेंस का फार्मूला इक्वल्स टू प्लस लिखांगे y2 इत्थे y हैगा माइनस y1 का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है जी। इनू मैं की कर सकती, x माइनस 0 की आ गया बच्चों x, तो y माइनस 0 की आ गया y। ਇਹਦਾ मतलब जदों कोई भी पॉइंट की दूरी सानू ओरिजिन तो पूछी होवे, सानू मूल बिंदु तो पूछी होवे, तो उसका डायरैक्ट फार्मूला जिहड़ा हैगा सी ए भी अप्लाई कर सकते, ठीक है। x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 का अंडर रूट। यही क्वेश्चन जिहड़ा हैगा साडा ए दिता होया आ, कहंदे
0.00 ਅਤੇ 3615 ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ XY ਦਾ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ x² + y² ਅਤੇ XY ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ 36 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਲੱਸ 15 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। 36 ਦਾ ਵਰਗ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1296, 15 ਦਾ ਵਰਗ ਆ ਗਿਆ 225, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 1521। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ = 39। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 36 ਅਤੇ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ 36 ਅਤੇ 15 ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਦੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਓ 39 ਯੂਨਿਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ 39 ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ 4 ਬਿੰਦੂਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ -2 2 2 -4 -3 -4 -5 -5 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਦੂਜੀ ਚੌਥਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ 4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ x ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ y ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ x' ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ y' ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਲੱਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪਲੱਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਦੇ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ x ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਆ ਅਤੇ y ਦਾ ਪਲੱਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਣਗੇ x ਦਾ ਪਲੱਸ ਆ ਅਤੇ y ਦਾ ਮਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ਦੂਜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ P ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ x2 - x1 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ y2 - y1 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ 5 ਅਤੇ -8, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ -2 ਅਤੇ 3। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ x2 - x1 ਮਤਲਬ ਕਿ -2 - 5 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ। ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਾਂ ਜਰਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। -2 ਅਤੇ -5 ਦਾ ਵਰਗ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ y2 ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ 3 ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ। 3 ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਅਤੇ -8 ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੂੰਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਕੁਏਅਰ ਲਿਖੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ। -2 - 5 ਕੀ ਆ ਗਿਆ -7 ਦਾ ਵਰਗ ਪਲੱਸ 3 ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਇਹਦਾ ਵਰਗ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀਏ। -7 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 49 ਜੋੜ 8 ਅਤੇ 3 ਕੀ ਹੋ ਗਏ 8 9 10 11 11 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 49 ਪਲੱਸ 11 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ 121 ਅਤੇ ਜੋੜ ਲਈਏ ਜਰਾ 121 ਨੂੰ 49 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 9 ਅਤੇ 1 10 4 ਅਤੇ 5 6 ਅਤੇ 1 7 170। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 170 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 170 ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ।